Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to share another subtopic, that is composting and recycling. It is a part of the uh, very that topic, that is management of solid and hazardous waste. तो इसमें आज हम देखेंगे कि लास्ट टाइम आपको याद है हमने बात की थी रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। उसमें तो हमने दो मेथड्स के बारे में बात की। एक में हमने देखा था डंपिंग के बारे में भी बात की थी। इसके अलावा हमने मतलब हीट ट्रीटमेंट, जिसमें हमने देखा इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस। वी हैव टॉक्ड अ लिटिल बिट रिगार्डिंग देम एज वेल। आज हम देखेंगे कि कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, दीज आर अनदर टू वेज बाय विच वी कैन डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट। Let us take first what is composting. So far as this composting is concerned, composting, it involves the conversion of organic wastes into compost और ह्यूमस। तो और हम ये कहेंगे कि जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ह्यूमस और कंपोस्ट और मैन्यूर में, थ्रू with the help of these worms or bacteria under oxygen rich conditions. तो उसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। सिंपली वी कैन से द वर्म और बैक्टीरियल decomposition of organic wastes under oxygen rich conditions into compost, manure, or humus, that is called the compost. And here the organic wastes, they include the vegetables, leaves, तो इस तरह मतलब लैंड चिप्स, लॉन चिप्स, and all these organic wastes are included in this. And these various organic wastes, they are basically actually they are piled up in the alternate layers of the soil and are turned up weekly in order to provide the better and efficient aeration फॉर द बैक्टीरियल एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, बेसिकली दे आर पाइल्ड अप with alternate layers of the soil and then they are turned up. This turning of the soil on weekly basis, this helps us this helps us in the better aeration, so that more and more air can penetrate into the soil. This will help the bacteria as well as the worms to decompose or degrade these organic wastes and convert them into humus or into compost aerobically. तो इसमें ये इनको हेल्प करता है। दिस इज and this method, it is the way, one of the easiest method, and it is inexpensive method, rather we can say, of disposing of the solid waste. तो अब इसमें जो है, जो इसका प्रोसेस मॉडल है, मतलब इस फैसिलिटी में जो प्रोसेस मॉडल, जो इसका मॉडल इन्वॉल्व होता है, दैट इन्वॉल्व्स बेसिकली द 3 स्टेप्स. One is known as the conditioning of the coarse material, and second is इसमें जो होता है, that is degradation or decomposition unit, and third one is the conditioning of the finest material, that is the final stage. These are the 3 processes which are involved under this model in converting these organic wastes into the manure or the compost, we can say. Now इस मतलब
कंपोस्टिंग, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हाउ वी कैन यूटिलाइज, इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इस कंपोस्टिंग के। पहले एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स और इन द एग्रीकल्चर। तो दूसरा, इसमें एक और प्रॉपर्टी ये है कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड इरोजन। दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in protecting the land erosion. This is another role or another application of this composting. तो तीसरा, it improves or it results in the land improvements in the gardening and other landscapes. तो ये इसका तीसरी एप्लीकेशन है। एंड फोर्थ, this can be applied or this acts as a component for the substrate production. Like in the laboratory, we prepare different types of the media for the culture, for culturing of various types of the microorganisms or for other experiments. तो वहाँ पे जो कल्चर के लिए सॉइल की जरूरत है, दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट material or the best substratum where this culture or can be prepared. तो उसमें भी इसकी एप्लीकेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसमें क्या होते हैं कि ये रही रिगार्डिंग द एप्लीकेशन और द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसकी क्वालिटी, बेनिफिशियल क्वालिटीज क्या है? The first important quality which is possessed by the composters is that they are rich in the organic materials. They are rich in the organic content, in the organic substances. दूसरा जो है, they are rich in the inorganic nutrients like potassium, sodium and magnesium, calcium. तीसरा जो इसमें है, इट इज ऑल्सो रिच इन ह्यूमस कंटेंट। ये भी इसकी एक बड़ी क्वालिटी है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्टिलाइजर। इट इज हाईली फर्टाइल सॉइल और वी कैन से इट इज हाईली मतलब इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल। तो ये भी इसकी एक और क्वालिटी है। तो इसमें एक और चीज होती है, ये सॉइल जो होती है, इट इज इरोजन रेजिस्टेंट। यहाँ पे जहाँ पे मतलब ऐसी किस्म की कंपोस्ट वाली सॉइल होगी जिसमें कंपोस्ट बनाए जाते हैं, वहाँ पे लैंड इरोजन और सॉइल इरोजन के कम चांसेस होते हैं। दैट में रेजिस्ट द इरोजन दिया। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, एक इसकी क्वालिटी है। हम ये कहेंगे कि हाँ, जो मतलब ह्यूमस रिच सॉइल होती है और कंपोस्ट सॉइल होती है, जहाँ पे ये कंपोस्टिंग की जाती है, that harbors a large number of the living organisms or the soil organism। ये भी इसकी एक क्वालिटी है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि इसमें वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है, दैट इज इंक्रीज, दैट इज मोर इन सच टाइप्स ऑफ द सॉइल्स और इन द कंपोस्ट सॉइल्स, द सॉइल्स व्हिच आर कंटेनिंग दिस ह्यूमस और द कंपोस्ट। तो वहाँ पे इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज अनदर क्वालिटी व्हिच is possessed by these composts। तो हाँ, तो इसमें एक और एडवांटेज है, इट इनहांसेस सॉइल पोरोसिटी। जो नंबर ऑफ पोर्स इन द सॉइल, इनकी तादाद इससे बढ़ती है सॉइल में। तो दिस इज वायर दिस इज रिगार्डिंग द क्वालिटी विच इज possessed by these composts। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि जो it acts as the natural means of waste treatment।
ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पे नेचुरली जो सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट होता है अंडर द नेचुरल प्रोसेसेस. दिस इज वन ऑफ इट्स बेनिफिट्स. तो इसमें क्या होते हैं कि इससे इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, इट इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, इसका टेक्सचर. तो ये इसका इम्प्रूव करता है, ये वाले मतलब ये कंपोस्टिंग. तो एक और बेनिफिट इसका है, इट लीड्स टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वेस्ट. वो तो पता ही है, इस सॉलिड वेस्ट का जो बर्डन होता है, दैट इज मतलब gets reduced when we convert a bulk amount of organic wastes into these composts or the humus. तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि इसमें मतलब लो कॉस्ट या नो कॉस्ट, इसमें मतलब इसमें जो एक्सपेंचर होता है दैट इज ऑफ इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. एंड तो ये दिस इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड द बेटर alternative than the dumping and the incineration. So this is regarding the composting, that is the another way by which we can dispose of the soil waste. As you are already aware, this disposing, it is one of the important steps which is involved in the solid waste management. And before that we have talked a little bit regarding the other methods, like initially we have talked regarding the this dumping and incineration. These are the other ways by which we can dispose of the solid waste. Now this was the third one. Now the fourth method by which we can dispose of the solid waste is the recycling. So, so far as this recycling is concerned, recycling simply means reproducing the discarded solid waste into new and useful products. तो उस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग कहते हैं, जब हम डिस्कार्डेड मटेरियल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, रिकास्ट करते हैं इनटू द न्यू एंड यूजफुल मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स, तो इसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं. जैसे कि तो ये भी बेटर मेथड है देन द इंसिनरेशन, और दिस इंसिनरेशन एंड द डंपिंग से ये बेटर मेथड होता है इन जस्ट डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट. तो इसमें क्या होता है कि इससे इट सेव्स द एनर्जी, इट सेव्स द मनी, इट सेव्स द एनर्जी मनी. तो इसके अलावा इसमें हम सेव करते हैं दीज मतलब रॉ मटेरियल्स, वो भी इससे बच जाते हैं. तो दिस इज व्हाई इट इज़ ए बेटर ऑल्टरनेटिव. लेकिन इस मैं जो इसकी मतलब जो इसके एडवांटेजेस होते हैं, पहला एडवांटेज यही है कि इट इज़ लेस मतलब इट में हम मतलब जो रॉ मटेरियल्स पे होते हैं ना, उन पे कम लोड पड़ता है. तो यही मटेरियल जो है मतलब यहाँ पे सॉलिड वेस्ट, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम रिसाइकल करते हैं या रीयूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द अदर प्रोडक्ट्स और फॉर मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट. दूसरा इसमें ये एडवांटेज है कि हाँ, it is best way to get rid of the inorganic solid waste, especially those solid waste which are non biodegradable. तो उनको हम इस मेथड से मतलब इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ये इसका दूसरा एडवांटेज है. तो एक और एडवांटेज मैं ये हम बात करेंगे कि हाँ, इससे डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल वो gets that gets it is the demand of raw material is decreased by this method, and the space which is required for dumping of the solid waste, that also gets मतलब is reduced. वो स्पेस यहाँ पे कम जरूरत पड़ती है. तो ये रही बात
रिगार्डिंग द रिसाइकलिंग क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। लेकिन रिसाइकलिंग में हाँ यूज होते हैं कलर बिन्स जिनको हम कहते हैं। These color bins are used by the waste management authorities, जो होती है, जो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब अथॉरिटी होते हैं, दैट यूज द कलर बीन्स। These color bins help in segregating or separating the various types of the solid waste. So and it becomes easy for them to just categorize these solid wastes, or to just divide or to categorize these solid waste into different categories, and they can easily then segregate and separate the wastes, and this makes their process of recycling these materials into new products, that process becomes easy by using these color bins, because they possess the color coding। मतलब कलर कोडिंग के हिसाब से एक वेस्ट एक बिन में रखा जाता है, दूसरा दूसरे में, तो इस तरह हमें पता चलता है इसमें कौन से टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इसमें कौन से है। दिस इज वन ऑफ द हेल्पफुल, दिस इज वन ऑफ द fruitful process by which we can segregate these solid wastes into various types। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस होते हैं, कुछ रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्या होता है, वहाँ पे हम जो ओल्ड डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं, they are converted back into the same type of the material or same type of the products। like जो कि अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम, the discarded aluminum material, it can be recycled back in to these aluminum cans। तो वहाँ पे जो कैन होते हैं एल्युमिनियम के, उन में हम बैक इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसाइकलिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ओल्ड डिस्कार्डेड मटेरियल्स दे आर रिसाइक्ल्ड, दे आर रिकास्टेड, or they are reproduced into the new products, like the discarded steel material, it is converted or it is recycled into the new parts of the automobiles or the machines। तो ये इसका एक और मतलब ये एक दूसरी किस्म की प्रोसेस इन्वॉल्व इसमें होती है। जहां तक इसकी लेकिन इस रिसाइकलिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो इसके ड्रॉबैक्स मतलब होता है, पहला ड्रॉबैक ये है कि इस रिसाइकलिंग प्रोसेस से पोल्यूशन होता है। तो बिकॉज मैनी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। एक और इस रिसाइकलिंग में क्या होता है, इट यूजेस, यहाँ पे मोर एनर्जी कंजप्शन होती है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है इस प्रोसेस में। एक और इसमें यह है कि तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट दैट इज आल्सो मोर, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। तो एक और इसमें यह है कि यहाँ पे लो क्वालिटी जॉब्स होते हैं। तो एक और जिसमें एडवांटेज इसका यह है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं जो इसके साथ डील करते हैं, इनको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इफ दे विल नॉट follow these guidelines or the SOPs in handling these wastes for the process of recycling, they may suffer several health hazards। So this is another important, this is another we can say drawback which is connected, which is associated with this recycling। तो एक और चीज इसमें है कि यहाँ पे गारंटी नहीं होते हैं कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नए बनते हैं आफ्टर द रिसाइकलिंग, दिस इज नॉट एंड दैट इट इज नॉट गारंटीड, good products are not guaranteed by this method of recycling। And this was the last one regarding the disposal of the solid waste, that is recycling। तो recycling के बाद हम इंशाल्लाह in the coming topic उसमें we will deal with the
hazardous waste materials. This was the solid waste materials as well as the municipality solid waste के बारे में यहाँ तक हमने बात की. तो in the coming topic we will deal with the hazardous management of the hazardous solid waste. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो till then, fi amanillah.